ओके बेटा सही है, मैं ये बंद ही कर दूँ मैं, मुझे बुरा लग रहा है, बार बार टन टन होता है वहाँ, मुझे बहुत बुरा लग रहा है ये। अच्छा हमारे पास क्या है, आर एस ए एल्गोरिथम अप्लाई कहाँ कहाँ होता है, क्या कुछ होता है, थोड़ी सी इंट्रोडक्शन बता देता हूँ मैं आपको। उसके बाद इतना मुश्किल टॉपिक नहीं है, बिल्कुल आसान टॉपिक है। मैंने कई लोगों को पढ़ाया है ये टॉपिक, कई फैकल्टीज़ को पढ़ाया है, और वो बेचारे पता नहीं गलत पढ़ रहे थे या क्या कर रहे थे। तो बहुत सारी फैकल्टीज, अच्छी अच्छी यूनिवर्सिटी की फैकल्टी को पढ़ाया है मैंने आर एस ए, और आर एस ए बिल्कुल सही तौर पर वो कर सकते हैं यूजेज ऑफ आर एस ए। सही, यूजेज ऑफ आर एस ए जो है उसका कहाँ है, किस तरह से क्या कुछ है, तकरीबन सभी जगह पे आर एस ए आजकल इस्तेमाल हो रहा है, और काफ़ी ज़्यादा सिक्योर नेटवर्क है ये, काफ़ी ज़्यादा सिक्योर आपके पास ये कहलाता है, क्या कहते हैं इसको, इसके हम वीडियो ओपन कर लेते हैं। सही है, नेटवर्क सिक्योरिटी में भी आ रहा होता है। चलो पहली वीडियो हम उसकी निकालते हैं। सर्च सिक्योरिटी target.com, ये आपके पास काफ़ी मशहूर आपके पास साइट है जो कि डिफरेंट सिक्योर नेटवर्क को बता रही होती है। मैं इसको ओपन कर रहा हूँ। Welcome to this Alan Talks Tech on RSA presentation. If you'd like a copy of this presentation, you can visit my wiki at alantestwiki.pbworks.com. If you'd like to view other technology-based videos, simply search on YouTube for Alan Talks Tech. And last but not least, if you'd like information on test equipment that could be used to test these interesting and complex, first published their findings on this new public key infrastructure back in 1977. But as you'll see at the end of this presentation, somebody else beat them to it. Unfortunately, it was kept a secret. Let's take a look at the mechanics of the RSA algorithm. We'll start off at step 1, generation of the public key. To generate the public key, we're going to select two prime numbers, P and Q. In this case, we're going to use relatively small numbers. In the real calculation, much larger primes will be used, but we're going to try and keep the math a little bit simple. In this case, P is going to equal 53, and Q is going to equal 59. By multiplying them together, we calculate the first part of the public key, which is going to be equal to n. So P times Q equals n, or 53 times 59 equals 3,127. We actually need one more number. We need a small exponent, e. E has to be an integer. It can't be a factor of n. 1 has to be less than e, and e should be less than phi of n. Don't worry about phi of n, I'll explain that in the next slide. For this example, we're going to say that e is equal to 3. बेटा इसको सुन लो, फिर उसके बाद मैं पढ़ाऊंगा इसको। Is really made up of two numbers, n and e, or 3127 and the number 3, the small exponent. Step 2. Now we're going to generate. मैं आपको लिंक शेयर करवा दूंगा इसका, ठीक है बेटा? Remember phi of n? Well, this is how you calculate phi of n. Phi of n is equal to p minus 1 multiplied by q minus 1. So those are the two prime numbers that we chose originally. Except this time when we multiply them out, it's going to be 52 times 58, or 53 minus 1, 59 minus 1, multiplied together. So in this case, phi of n is going to equal 3016, 3016. To calculate the private key, which is going to be equal to d, we're going to multiply phi of n by 2, add 1, and divide it by our small exponent, in this case number 3. So 2 times 3016 plus 1 divided by 3 equals
2011 or 2011. So our private key D is equal to 2011. Okay, now we've got the public key and the private key, we can begin to encrypt our data. In this case, step 3, we're going to encrypt the data with the public key. To encrypt the data, we're going to need our public key. Remember, the public key is made up of N and E, or 3127, and the number 3. Our private key, D, will be used later on to decrypt the message. Let's take a simple word, a very small simple word, hi. What we're going to have to do is convert the letters to numbers. H is going to equal 8 and I is going to equal 9. These are just the respective positions of H and I within the alphabet. So we'll put them together and make them one number, 89. So 89 represents the word we're going to encrypt, which is hi. C is going to be the encrypted data. To encrypt the data, we take the number 89, raise it to the power of E, and then we use modular division. We're going to divide it by mod n. Mod n basically indicates that we're going to divide it by a number and the result is going to be the remainder. So for example, 89 to the power of 3 mod 3127 gives us the encrypted data 1394. Basically what I'm saying is 89 times 89 times 89 divided by 3127, remainder is equal to 1394, our encrypted data stream. Now that we've encrypted the data, of course we have to decrypt it. This is step 4. So we're going to decrypt it with the private key. Remember, the beauty of the system is that everybody could have access to the public key, which can be used to encrypt the data, but that public key cannot be used to decrypt the data. Only the person who calculated the keys originally has access to the private key, and only that person can successfully decrypt the data. So remember, C is our encrypted data, D is the private key, and N is the public key. The decrypted data is going to equal C to the power of D, so that's our encrypted data raised to the power of the private key mod n, that is mod public key. So in our example, 89, which is the decrypted data, is going to be the encrypted data 1394 to the power of 2011 mod 3127. So basically what I'm saying is 1394 to the power of 2011 divided by 3127, and the remainder is 89. Remember, here we're interested in is the remainder, what's left over, not how many times 3127 can go into 1394 to the power of 2011. It's the remainder. As you can see, even with these very small numbers that I've used in this example, the numbers can become very, very large. Fortunately, if you want to use your Microsoft calculator, which comes with Windows, it's capable of performing these calculations. So here we have the resulting decrypted data, 8 and 9. We know 8 is equal to H and 9 is equal to I, so we have our decrypted data, hi. अच्छा ओके बेटा, ये जो है यहाँ पे आपने देखा कि ये किस तरह से समझाया जा रहा है, क्या कुछ किया जा रहा है इसमें, ठीक है। तो मैं ये चाह रहा हूँ, अब मैं आपको बताना ही चाह रहा हूँ कि मैंने इसको सॉल्व कैसे किया है, ठीक है। आवाज़ आ रही है आप लोगों को? हाँ, अब ये मैंने इसको सॉल्व कैसे किया है, क्या कुछ है, इससे बहुत ही आसान करके मैंने सॉल्व किया है और ये बहुत आराम से ये आपको समझ में भी आ जाएगा और मैं आपको इसको करके भी दिखा दूंगा कैसे हम काम कर रहे होते हैं। देखिए, सबसे पहले जो है, जो मैंने आपको बताया, ये तमाम चीज़ें मैंने एज ए इन्फॉर्मेशन के लिए मैंने रख दी हैं इसमें। शुरू यहाँ से करते हैं, सही है, शुरू यहाँ से करते हैं। इसके अंदर आप ये देखिए कि हमें 2 नंबर लेने हैं,
सही है, पी और क्यू। अच्छा, प्राइम नंबर क्या होते हैं? 1 2 3 5 7 11 13 17 19 23। सही है बेटा, ये सारे के सारे क्या होते हैं? प्राइम नंबर होते हैं। आपकी मर्ज़ी है आप क्या प्राइम नंबर लेते हैं, उनको मल्टीप्लाई करते हैं। सही है, और मल्टीप्लाई करने के बाद मैं यहाँ करके दिखा देता हूँ आपको। एक मिनट, मैंने इसको बहुत ही आसान करके बनाया है, बहुत ही इजी। जिसको समझ लीजिए कि नहीं आता वो भी बड़े आराम से कर लेता है इसको। सही है, पेपर में सवाल आते ही आता है, तो इस वजह से ज़रूरी है। अच्छा बेटा, अब बताओ प्राइम नंबर क्या होते हैं? यहाँ बोलो, बोलो प्राइम नंबर क्या होते हैं? प्राइम नंबर होते हैं, ये 1 हो गया, 2 3 5 7 11 13 17 19 डॉट 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 डॉट। ठीक है बेटा, ठीक है बेटा, ये सारे के सारे आपके पास कितने प्राइम नंबर होते हैं। अब आप क्या करें, आपकी मर्ज़ी है, आपकी मर्ज़ी है कि आप क्या करें, कोई से दो प्राइम नंबर आप ले लें। अब आपने लेट से यहाँ पर प्राइम नंबर जो है, अब लेट से आपने एक नंबर ले लिया 1 और एक नंबर ले लिया आपने 3, तो आपका n जो होगा वो मल्टीप्लाई करके होगा 1 3 ज़ा 3, तो n की वैल्यू आ जाएगी 3। आपने इन दोनों प्राइम नंबर को आपने लेट किया है, सपोज करना है आपको। तो पहला स्टेप क्या करना है आपको? सपोज करना है। सपोज क्या करना है हमें? 2 प्राइम को सपोज करना है। ठीक है बेटा, दो प्राइम नंबर को सपोर्ट, इस आपकी मर्जी, आप जो लेना चाहें। अगर मैं 1 ले रहा हूँ तो 1 1 3 हो गया, या 2 3 हो गया, ये हम ले सकता हूँ इसके अंदर। तो आपको सबसे पहले फाइंड क्या करना है? n फाइंड करना है। n से पहले क्या फाइंड करना है? p फाइंड करना है। p से पहले फाइंड क्या करना है? q फाइंड करना है। ये आपने दोनों ने लेट करना है। ठीक है बेटा, अब कॉपी में लिख लो, पहला स्टेप क्या होगा, दूसरा स्टेप क्या होगा। ये लेट वाला पहला स्टेप है और ये वाला दूसरा स्टेप है बेटा। जल्दी से लिख लो उसको, फिर हम आगे जा रहे हैं। बेटा जल्दी से लिख लो, क्या बज के 4 मिनट हो गए। यस सर, लिख लिया। ओके, सर हो गया। सही है। अच्छा, इसके बाद क्या है, आपने अगर लेट से नंबर ले लिया, मैं एक एग्जाम्पल की बात कर रहा हूँ। अगर आपने p ले लिया है हमारे पास, लेट से 2 ले लिया है और q हमारे पास आपने 3 ले लिया है, तो n कितना होगा हमारे पास? p मल्टीप्लाई बाई q, यानी होगा 2 मल्टीप्लाई बाई 3, यानी होगा 6। अच्छा, उसके बाद क्या है, आपने क्या करना है, इसमें से एक वैल्यू कम करनी है, ये स्टेप 3 हो जाएगा। सही है, तो आपने p में से एक निकाल देना है, मल्टीप्लाई बाय q में से भी एक निकाल देना है, और इसको कहना है फाई ऑफ n। सही, इसको कोशेंट कहते हैं, फाई ऑफ n। अब बताओ p क्या है हमारे पास? 2 - 1 है। ठीक है बेटा, ओके, और मल्टीप्लाई बाय q क्या है हमारे पास? 3 है, 3 - 1 है, तो जवाब आ गया फाई ऑफ n। अब हमारा 2 - 1 यानी 1 मल्टीप्लाई बाय 2, तो फाई ऑफ n क्या होगा हमारे पास? 2 आएगी वैल्यू। तो ये पहला स्टेप हो गया, ये दूसरा स्टेप हो गया, और ये वाला कौन सा स्टेप हो गया बेटा? थर्ड स्टेप हो गया। जल्दी से देख लो, आसान लग रहा है ना अभी ये? अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल है? खैरियत? सर रात में मैंने पॉइंट फजर में मैंने आपको भेजे पॉइंट्स CS फैकल्टी में। आप वो पॉइंट देखकर बस गोथ्रू कर लें, बस आप वही खोल के बैठे आराम से कर लेंगे इंशाल्लाह। और सुबह के जो पॉइंट्स थे, सुबह के पॉइंट बता दूँ ना। सुबह के पॉइंट्स ये थे कि आप शाम के अंदर कितने लोग हैं वो बताएंगे कि उनके बच्चे जो हैं वो ऑनलाइन क्लासेस के अंदर इनरोल्ड हैं। सही है, तो वो आपने लिस्ट लेनी है हर आदमी, वो आपने बताना है। उसके बाद टेक्नोलॉजी का जो आउटकम क्या हुआ, टेक्नोलॉजी का आउटकम बता दीजिए जो क्या होगा। सार जो बनेंगे सेल्फ असेसमेंट रिपोर्ट, वो मैकेनिकल के इलेक्ट्रिकल के बनेंगे, और वो बता दीजिए कि आप 2 कोर्स के अंदर होंगे। मिस राबे ने किसकी ड्यूटी लगाई है, वो पूछ रहे हैं उससे कि आपने किसकी ड्यूटी लगाई है। नाथ कॉम्पिटिशन के अंदर SOP पूछ लीजिए सूफी साहब से, आपको SOP बता देंगे क्या है। उसके बाद ऑनलाइन गेम्स है वो अब आगे होने हैं नहीं होने, उसकी बता दीजिए।
किस फैकल्टी ने डेटा बैंक जो है वो बना लिया है वो बता दें, ठीक है। कौन किसी जमा करवा दिया, एडमिशन के जो हैं वो बता दें, एडमिशन से रिलेटेड के जो एंटी टेस्ट ओके के जो सर। क्वेश्चंस हैं, ये सर आपने पूछने सारे। हाँ हाँ सर, मैंने आपको सुबह भेजा हुआ है 5 बजे, आप चेक तो कीजिए। सुबह 5 बजे CS में देखें आप, उसमें शेर व शायरी की लिखी है सर, आप शेर ही पढ़ दीजिएगा उसे देख के। पूरी मीटिंग मैंने प्लान करके मैं रखता हूँ अपनी फैकल्टी के लिए, वो बस कहता हूँ तो देखो और कर लो बस। और क्या सर, आपको अकेला छोड़ना है क्या? आपका अकेला कोई नहीं छोड़ा आपको। जी बोले। भाई लैब के SOPs मैंने आपको बताया भी थे, आपसे मेरी बात भी हुई थी कि उसके अंदर आपको बताना है कि मैं तो ये आउटलाइन को ये करके ये फॉलो कर रहा हूँ, मगर ये कुछ कॉन्टेंट्स हैं जो उससे रिलेटेड है मगर थोड़े एडवांस हैं और ये बाहर यूनिवर्सिटी में पढ़ाए जा रहे हैं, उसकी आप वीडियो उसके साथ एडिट करके जमा कराते हैं बस, और क्या था सर। मेरे पास लेफ्ट हैंड सर मेरे पास डिटेल एंड डिटेल के हैं, वो मैं आपको दे दूंगा। मैं डिटेल एंड डिटेल के मीटिंग में ही बोल दीजिएगा, आप मुझे याद करवाइएगा, मैं भेज दूंगा, आप परेशान ना हो। हाँ डिटेल एंड डिटेल के मेरे में कंप्लीट डेटा सेट है, मैं दे दूंगा आपको। और बताइए। डेटा बैंक ये देंगे 50 क्वेश्चन आंसर देने हैं आपके पास, MCQ बेस्ड एडमिशन डिपार्टमेंट को, इसमें सही था वो। ये थर्सडे तक देना, 4 दिन के अंदर देना है। तो मेरी क्लास चल रही है, मेरी क्लास चल रही है सर। सही है, ये आप सर इमरान सिंह के सर, इमरान की मेरे साथ क्लास नहीं है, इसमें अगर क्लास नहीं है तो आप उससे डिस्कस कर लीजिए। मैंने तो बना के उसी पर भेज दिया था, मैंने कहा इसको पूछना मुझसे पूछिए। और आपको शेर व शायरी का कहा जाएगा, शेर व शायरी का भी मैंने इंतज़ाम कर दिया है। कोरोना में शेर पढ़ने का कहें, कोरोना में पढ़ दीजिएगा शेर। अगर या तो सामाजिक फासले पे, सोशल डिस्टेंसेस पे कहें, उस पर भी शेर मैंने कहा हुआ है। वो पहला शेर जो है पढ़ दीजिएगा गज़ल में से, उस गज़ल में पहला शेर पढ़ दीजिएगा, वो सोशल डिस्टेंसिंग वाला ख़त्म हो जाएगा। अगर आपको कहा जाए मोटिवेशन, तो मोटिवेशन पहला शेर हम कर जाएंगे। वो आप पढ़ दीजिएगा। तो ये मैंने सब चीज़ें तैयार करके आपको दी है, ठीक है। ओके एंजॉय, ओके। इसको अपडेट कर दें अभी आप जी बेटा बोल जी। ओके बेटा बोलो बोलो। ओके बेटा देखो मैंने आपको कहा भी था। पेज का लिंक, ओ भाई साइड में लगा है ना सब। ओके बेटा, तो मैं ये कह रहा था आपको कि देखिए मैं आपकी क्लास ले रहा होता हूँ, मुझे बहुत सारे फ़ोन आए भी होते हैं और वो बहुत अर्जेंट होते हैं फ़ोन। अच्छा बेटा यहाँ पे बताइए कि पहला स्टेप, दूसरा Excuse me, स्टेप, sir, तीसरा Adnan. स्टेप क्लियर है? जी बोलिए। अस्सलाम सर। अस्सलाम वालेकुम। सर सलाम बात कर रहा हूँ सर, हाँ। मुझे 2 मिनट चाहिए होंगे बस। जी बोलिए सर एक सर्वे फॉर्म के रिलेटेड आपको लिस्ट शेयर की गई थी जी पूछ लीजिए आप, स्टूडेंट से। मैंने इनको बता दिया है। अच्छा सर, वो आपने शेयर कर दी है हाँ। जिन स्टूडेंट्स के? पूछ लें। अच्छा, तमाम स्टूडेंट्स, आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप लोगों को एक फॉर्म शेयर किया गया है, सर्वे फॉर्म, जिसको फिल करना ज़रूरी है। कुछ स्टूडेंट्स अभी तक रिमेनिंग हैं, उसकी लिस्ट शेयर कर दी गई है। काइंडली उसमें अपना नाम चेक करके आप लोगों को उसको शेयर करना है, ठीक है। इसको फिल करें। और सेकंड ये कि एक हमारा नाट कंपटीशन है, उसकी भी पोस्ट आपको मिल गई होगी। उसमें करना कुछ ऐसा है कि आपने कोई भी अपना जो अपने कोई भी एक वीडियो बनानी है नाच की, और वो जो है आपने 19 मई से पहले आपको इस नंबर पर सबमिट करनी है, तो फिर आप उसमें हिस्सा ले सकते हैं।
बाकी लिस्ट आप लोगों को मिल गई है और आप लोगों के पास उसका कौन से नंबर पे सबमिट करने सर? सॉरी कौन से नंबर पर करनी है? ये इसमें नाथ कंपटीशन के पोस्ट के ऊपर नंबर मेंशन है बेटा बोलिए। अतर जावेद उसी- साहब का उसी उस के पे अंदर ही आपने है? WhatsApp- जी उसी पे है, उसी पे आपने व्हाट्सएप बेटा तुम्हारे सामने अभी मैंने मीटिंग बारे लगाऊंगा 5:30 बजे तुम्हारे सामने लगाऊंगा। ठीक है। अभी क्लास तो लेने दो। जी सर। तुम्हारे नंबर कहीं बाकी जा रहे हैं, जिन हमारे- स्टूडेंट्स ने हमारा अभी तक मुझे- सर्वे मुझे रोक के क्या करना नहीं किया बताओ? ताकि वो जो है अभी फौरन उसको ठीक करेगा। है बेटा, चलो चलो ठीक बेटा है सर। चलता हूँ। मैं ले लूँ डिस्ट्रिक्ट जाते हैं बेटा, डिस्ट्रिक्ट। ठीक है बेटा, ठीक है सर, आप वो लिस्ट देख लीजिएगा, इसमें से और मजीद जो रहते होंगे। ठीक है सर, अदनान। थैंक यू सो वेरी मच सर, थैंक यू सो वेरी मच। ओके, थैंक यू। अच्छा बेटा ये बताओ, पहली चीज़ आपको समझ में आ गई? आपने 2 प्राइम नंबर सपोज करना है, दूसरी चीज़ आपको समझ में आ गई, उसका एन निकालना है। देखो पहली चीज़ क्या है, आपने लेट करना है पी और क्यू। यस सर। दूसरी चीज़ क्या है, आपने इसको मल्टीप्लाई करना है टू गेट एन, तो ये दूसरी चीज़ है। तीसरी चीज़ क्या है, पी में से 1 निकालना है और क्यू में से 1 निकालना है। ये हो गया फाई ऑफ एस। ठीक है बेटा, ये 3 चीज़ें आपने करनी है। ठीक है, अब चौथा स्टेप, भाई गाने बंद कर दो, रमज़ान में कौन सुन रहा है गाने? ओके, आपके पास तीसरा स्टेप बता दिया, अब चौथा स्टेप है हमारे पास। चौथा स्टेप ये है कि हमें बताना बच्चे को ये है कि प्राइमरी की और सेकेंडरी की क्या होती है। ठीक है, यहाँ देखो, पब्लिक की क्या होती है हमारे पास, प्राइवेट की क्या होती है। अच्छा ये बताओ मुझे कि किस किस बच्चे ने कभी ना कभी बैंक के अंदर अकाउंट खोला हो? मैं बात कर रहा हूँ लॉकर की। किसी बच्चे ने लॉकर खोला है किसी बैंक के अंदर? कभी लॉकर बाय किया है या? देखिए लॉकर जो होता है ना वो इस तरह का होता है। वो मैं आपको बना के दिखा देता हूँ। ठीक है बेटा, इसमें 2 चाबियाँ लगी हुई होती हैं। एक चाबी जो है यहाँ पे होती है, एक चाबी जो है वो यहाँ पर होती है। ये वाली चाबी जो है, पहली वाली ये होता है मैनेजर। मैनेजर जो है एक लंबी सी चाबी लेके आएगा और इसके अंदर कुछ इस तरह से दांत होंगे। वो ये चाबी लगाएगा इसके अंदर और आपके हवाले करके जो है बाहर चला जाएगा। तो आपके पास ये वाली की जो है ये पब्लिक की होती है। ये क्या होती है हमारे पास? पब्लिक की होती है, क्योंकि ये चाबी अगर 1000 भी लॉकर है ना तो 1000 के 1000 लॉकर के अंदर ये चाबी लग जाती है। तो इसको कहते हैं पब्लिक की। पब्लिक की के माने ये वाली चाबी लगाएगा, घुमाएगा, घुमाने के बाद वो इस लॉकर को खोल नहीं सकता वो। अच्छा, अब आपके पास एक चाबी दी होती है उसमें, तो वो चाबी जो है वो इस तरह की चाबी होती है। आपको इस तरह के दांत बने होते हैं उसमें। ये चाबी जो है आपकी चाबी होती है, इसको कहते हैं प्राइवेट की। तो जैसे ही अभी प्राइवेट की लगाते हैं तो ये खुल जाता है। जैसे ही आप प्राइवेट की लगाते हैं तो ये खुल जाता है। हाँ, अगर आप कोशिश करें कि खुद ही प्राइवेट की लगा लें और ये पब्लिक की ना लगाएं तब भी नहीं खुलता ये। तो मैनेजर आपके साथ आएगा, आने के बाद इस लॉकर को पब्लिक की के थ्रू ओपन करेगा, मगर ये लॉकर नहीं खुलेगा। तो ये लॉकर ये नहीं खुलेगा, वो आपको प्राइवेट की लगाएंगे आप तो ये लॉकर खुल जाएगा। ये सेम चीज़ जो है RSA में बताई जा रही होती है कि पब्लिक की और प्राइवेट की होती क्या है। ठीक है बेटा, समझ में आ गया? हेलो जी सर। ओके? जी सर। अब इसको लिख लो ताकि हम आगे जाएं। अब ये बताइए, जो वहाँ पढ़ाया जा रहा था आपको इंटरनेशनली, वो डिफ़िकल्ट था या ये डिफ़िकल्ट है? वो डिफिकल्ट था सर। हाँ, या सर जी बोलो। डायग्राम आप एक दफ़ा वापस बता देंगे। सर इमरान की कॉल आ गई थी तो मैं बेटा लॉकर आपने कभी बैंक में खोला है? नहीं। बैंक का लॉकर। लॉकर 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 देखो, जब Yes, लॉकर sir. आप जब लॉकर जब ओपन करते हैं बैंक के अंदर तो आपके पास 2 चाबियाँ होती हैं। सही, एक चाबी जो है हमारे पास, अरे भाई आ गया, एक चाबी हमारे पास क्या होती है, वो चाबी बैंक वाला जो है, बैंक मैनेजर जो लेके आया हुआ होता है, बैंक मैनेजर लेके आता है, वो चाबी कुछ यूँ होती है। ये जो पब्लिक की होती है ये हर लॉकर के अंदर लग जाती है
और हर लॉकर को घुमा देती है, ओपन कर देती है, मगर लॉकर खुल नहीं पाता। जब आपके पास वो कस्टमर होता है अपनी प्राइवेट की लगाता है इसके अंदर, तो ये लॉकर आपके पास जो है खुल जाता है। तो इसका मतलब ये हुआ एक लॉकर है हमारे पास, वो ये है लॉकर। मैं इसका फ्रंट साइड बता रहा हूँ। फ्रंट साइड बताने के बाद इसके अंदर कुछ यूँ करके दो चाबियाँ होती हैं। ये हमारे पास क्या होती है, ये होती है पब्लिक की, सही है, और ये हमारे पास क्या होती है, प्राइवेट की, सही है, ये होती है PR। तो आपके पास ये वाली की जो बैंक के मैनेजर के पास होती है, और ये वाली की क्या होती है, आपके पास होती है। अगर आप डायरेक्ट अपनी की लगा के लॉकर खोलना चाहें तब लॉकर नहीं खुल सकता, आपको बैंक मैनेजर को कहना पड़ेगा हर हाल में कि भाई आप पहले ऐसा करो कि मेरा लॉकर आप ओपन कर दो उसे, तो वो बैंक मैनेजर ओपन करेगा। यानी कि पहला स्टेप ये होगा, दूसरे स्टेप के अंदर प्राइवेट की होगी, इसमें अपनी की लगाएंगे आप, तो फिर ये लॉकर खुलेगा, वरना लॉकर नहीं खुलेगा। यही लॉजिक जो है RSA के अंदर फॉलो की जाती है, इसको पब्लिक की और प्राइवेट की कहते हैं, सही है। पब्लिक के अंदर RSA के अंदर कहते हैं कि ये KU है और ये क्या है, KR है। KR के माने प्राइवेट, KU के माने पब्लिक। ये दो कीज होती हैं आपके पास, आप इसको लिख लीजिए कॉपी के अंदर, मैं आगे बता रहा हूँ, ठीक है बेटा। ओके सर, थैंक यू। हाँ, इसको लिख लो। ओके बेटा, लिख लिया सारों ने? इसको लिख लो, ये मुश्किल टॉपिक नहीं है, बहुत ही आसान टॉपिक है ये। सर लिखिए आगे। बहुत ज़बरदस्त हो गया, ज़बरदस्त। फिरोजा को तो हाफिज हो गई है। लिख लिया जब मैंने फर्स्ट टाइम नॉर्थ में पढ़ाया था ना, तो मुझे स्टूडेंट ने ये कहा था, सर मैथ्स के अंदर हम बिल्कुल पैदल हैं, ऐसे ही है जी। और उनको जो आवाज़ कट रही है आपकी। मैं ये कह रहा था, मैं नॉर्थ के अंदर जब फर्स्ट टाइम पढ़ाने के लिए आया मैं, तो मुझे एक स्टूडेंट ने कहा कि सर मैथ्स के अंदर पैदल हैं, ठीक है, ऐसे ही था, सही है। तो वो स्टूडेंट था हमारे पास फिरोजा। मैंने कहा ऐसा हो नहीं सकता कि आप जो हैं वो मैथ्स के अंदर ख़राब हो, और अब आप देखें कि मैथ्स के अंदर इतने आराम से ये पढ़ रही होती है, माशाल्लाह, मुश्किल जो है इतने आराम से निकालती है, मैं खुद तक में रहता हूँ, ठीक है। अच्छा भाई, अब आपने क्या करना है, ये वाली चीज़ आपने, ये वाली चीज़ लिखनी है कॉपी के अंदर, ये वाली। मैं आपको ये बता देता हूँ क्या लिखना है, उसको मुझे मिटाना पड़ेगा, अगर आप कहते हैं तो मिटा देता हूँ, ठीक है बेटा। मिटा दूँ इसे, बेटा से मिटा दूँ? सर। ओके, यस सर। ठीक है बेटा। अब आपने करना क्या है, स्टेप नंबर 4, ये है स्टेप नंबर 4 और ये है स्टेप नंबर 5। बेटा लिखो जल्दी। ठीक है बेटा, लिख लिया बच्चे, लिख लिया? लिख रहे हैं सर। जबरदस्त जबरदस्त, कर लो। देखिए आपको आइडिया हो रहा होगा, एक पढ़ाया जाता है पास करने के लिए, एक पढ़ाया जाता है फेल करने के लिए। आपको आइडिया हो रहा होगा कि पास करने के लिए कैसे पढ़ाया जाता है, फेल करने के लिए कैसे पढ़ाया जाता है। आपकी आवाज़ क्यों कट रही है? हाँ, मैंने कहा है कट जाओ।
आवाज करती है जल्दी से ज्यादा। सर वो ऑनलाइन कोर्स का लिंक ग्रुप पे दे देंगे सर? दे दिया सर मैं। बेटा प्रोवाइड कर तो दिया है। तो वाइस से गिफ्ट करना चाहिए। हाँ हाँ, CS कोर्सेज लिखे हैं मैंने। CS कोर्सेज में डिस्क्रीट का भी कोर्स लिखा हुआ है मैंने, वो भी आप उसको ऐड कर लें। मगर देखो मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि वो कोर्सेज जो हैं वो हैं यही जो मैं पढ़ा रहा हूँ, यही पढ़ा रहे हैं, मगर वो इतना मुश्किल करके पढ़ा रहे हैं कि बच्चा जो है वो कह रहा है बस अल्लाह की पनाह मांगता हूँ, तो समझ लो। मगर आप कह रहे हैं कि वहाँ पे रजिस्टर करो। हाँ, तो आप जब ये वाला कोर्स पढ़ लेंगे ना, ये वाला, वो कोर्स आपके लिए बिल्कुल हलवा हो जाएगा वो समझ में। मतलब वहाँ से कोई सा भी एक कोर्स क्या बताएं सर? एक कोर्स में ले लेना सर वहाँ पे। देखो इसमें कॉम्बिटोरियल मैथ्स के नाम से कोर्स है, कॉम्बिटोरियल मैथमेटिक्स के नाम से कोर्स है, वो आपके पास डिस्क्रीट स्ट्रक्चर का ही कोर्स है वो, और वो काफ़ी आसान कोर्स है। मगर आप जब ये पढ़ लेंगे ना तो कोर्स और आसान हो जाएगा। और अगर वो आपको वहाँ पेपर अटैम्प्ट कर लें, आप हमें बता दें कि हमने अटैम्प्ट कर लिया है, तो आपके जो है 10 मार्क्स मिल जाएंगे आपको। ठीक है बेटा, बिल्कुल हलवा कोर्स है, मुश्किल नहीं है। कोई भी एक कोर्स उठा ले वहाँ पे। हैं? कौन से मार्क्स मिलेंगे? उठा लेना वहाँ से। बोनस हाँ। सर जिसने रजिस्टर कर लिया है वो आपको इसकी स्क्रीनशॉट भेज देना। हाँ भेज दीजिए स्क्रीनशॉट। ईमेल करें या व्हाट्सएप पर्सनल पे? बेटा ईमेल मुझे ये है कि व्हाट्सएप पे डिलीट हो जाता है कुछ दिन के बाद। ईमेल कर देता हूँ क्या करना है? सब्सक्राइब हाँ बेटा करना है। अच्छा मैं पढ़ा लूँ क्योंकि टाइम निकल रहा है, मुझे मीटिंग पे जाना है 4:50 पे। अच्छा बेटा यहाँ पे आप मुझे जो है 5:15 पे आ जाऊँगा। तो सर CP की मेल करी थी आपको। हाँ बेटा अब मैं 5:15 पे आके यही काम करूँगा आज। ओके हाँ बेटा, यहाँ ये बताओ मुझे कि यहाँ पर पहला स्टेप ये है कि आपने पहला प्राइम नंबर लिया P = 3, दूसरा प्राइम नंबर लिया Q = 11, फिर आपने n की वैल्यू निकाली, वो निकाली P × Q यानी 33 हो गई इसकी। फिर चौथी आपने वैल्यू निकाली यहाँ पे phi of n की, phi of n हो गया हमारे पास 3 - के 1 और 11 - के 1, जवाब हो गया 2 × 10 हो गया 20। सही है, ये देखो ये लिखा यहाँ पे 20। सही है, इसको कहते हैं टोशेंट। इसको क्या कहते हैं? टोशेंट कहते हैं। रिलेटिव प्राइम। रिलेटिव प्राइम के माने क्या हुए हमारे पास कि आप अब जो वैल्यू लेंगे चॉइसेस की, जो आपके पास लिखा हुआ क्या है, चूज अ प्राइम नंबर D such that के इज को प्राइम Z is not divisible by D, we have several choices। सही है, अब आपके पास चॉइसेस क्या हैं? 20 से अंदर 20 से छोटे छोटे प्राइम नंबर हमारे पास, तो आपके पास क्या था 3, 4, 5 और उसके बाद 7, 11। अब यहाँ पे देखिए शुरू हो रहा है यहाँ पर 5 से बड़े और 5 से बड़े, यानी कि आपके पास नंबर जो है वो होगा 5 से बड़ा, यानी कि आपके पास ये 7 हो गया, 11 हो गया, 13 हो गया, 17 हो गया, 19 हो गया। सही, वी कैन नॉट यूज़ 5 बिकॉज इट इज़ डिविजिबल बाय। अब ये देखो ये वाला 20, अब इस 20 के अंदर हमने 5 ऐसा नहीं लिया कि ये पूरा का पूरा डिवाइड हो जाएगा, तो हम अपनी एनर्जी क्यों ज़ाया करें? तो हमने 5 को नहीं लिया, हमने ले लिया 7 को, हमने ले लिया 11 को, हमने ले लिया 13 को, हमने ले लिया 17 को, हमने ले लिया 19 को। ठीक है बेटा? ठीक है बेटा? ठीक है बेटा, 5 क्यों नहीं लिया हमने? 5 क्यों नहीं लिया बताइए? क्योंकि वो डिविजिबल है। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। सही है, तो अब हमने क्या किया, हमने 5 नहीं लिया तो हमने क्या है 7 ले लिया। अब 7 को हम कहेंगे D। अब हमने किया है लेट D = 7। अब हमें फाइंड करना है E = ? अब E फाइंड करना है। हमने D जो है हमें 7 मिल गया और हमें E जो है पता नहीं है। हमें D जो है 7 मिल गया और हमें E पता नहीं है बेटा। अब आप तो लिख लो हमने 7 कैसे चूज़ किया, अपने पास लिख लो बेटा। 7 कैसे चूज़ किया हमने बताओ। सर एक
7 जो हमारे पास जो वैल्यू आ रही है 5 के बाद वाली, हाँ। मतलब 5 से अबव वाली वैल्यू, बिल्कुल सही है। वो हमने सही ले लिया, सपोज कर लिया, बिल्कुल सही राइट। है। ऐसे ही ये आपको 20 के अंदर अंदर प्राइम नंबर जो है ना, 20 के अंदर अंदर प्राइम नंबर आपने लेने हैं। मगर जब आपने शुरू किया तो आपको 5 ऐसा प्राइम नंबर मिला जो कि डिवाइड हो जाता है 20 से। सही है, जब वो 20 से डिवाइड हो जाता, भाई कौन है ये, अपना माइक म्यूट कर दें। अभी 5 जो है डिवाइड हो जाता 20 से, तो उसमें फ़ायदा क्या होता, उस पर ये नुकसान होता हमें कि हमारे पास ये वैल्यू यूज़ ही नहीं होती। तो 5 से बड़ा कौन सा है, 7 है, ठीक है। तो Yes, sir, मैंने भी यही बोला। हाँ, तो हमने D जो है वो 7 ले लिया। बिल्कुल सही कहा आपने, मैं यही तो कह रहा हूँ। आपने क्या किया, D = 7, तो ये बिल्कुल सही वैल्यू ली है। अब आखिरी वैल्यू बची है, लास्ट वैल्यू बची है, जिसको कहते हैं हम E, वो हमें फाइंड करना है और एल्गोरिथम खत्म। ठीक है बेटा, अभी हमें कॉपी में लिख लो, हमें आखिरी पार्ट पे काम कर रहे हैं हम, फिर एल्गोरिथम खत्म। बेटा लिखिए सबने, नहीं सर, जल्दी लिख लो बेटा, खत्म भी करवाना है इसको। और ये इम्पोर्टेंट है, फाइनल के लिए भी इम्पोर्टेंट है और आपका बिट टेस्ट के लिए भी इम्पोर्टेंट है। ये दूसरा बिट टेस्ट कब होगा? बिट ये अभी 10 के बाद हो जाएगा। डन सर, डन। ठीक है, ठीक है बेटा, शुरू करूं? यस सर, यस। ओके, जबरदस्त। अच्छा बेटा, अब हम नेक्स्ट जो है वो जा ही रहे हैं। ओके, अब मैं बताऊं फॉर्मूला क्या था। फॉर्मूला ये था जिसको आप करने जा रहे थे, ये था 7E = 1 mod 20। 20 को हम कहते हैं phi of n, ठीक है। 7 को कहते हैं हम D, और E तो ऑलरेडी लिखा हुआ है यहाँ पे। ये क्या है, हमारा रिमाइंडर है, यहाँ पास क्या है, रिमाइंडर है, सही है। अब हमने क्या किया, अपना लेट करना शुरू किया। हमने कहा लेट E = 1, सही है। तो 7 × 1 = 1 mod of 20। अगर मैंने 7 को डिवाइड किया 20 के साथ, तो जवाब क्या आएगा, पॉइंट्स में आएगा, आएगा नहीं आएगा? यस सर। सही है, तो ये वाली वैल्यू गलत हो गई। फिर हमने लिया लेट E = 2, यानी कि 7 × 2 = 1 mod of 20। तो ये लिया हमने 14 / 20। जवाब बताओ बेटा क्या आएगा, पॉइंट्स में आएगा? यस सर। ये भी गलत हो गया। फिर हमने E की वैल्यू ले ली 3, ये हो गया 7 × 3, तो आपके पास 1 mod 20। इसमें हमने क्या किया, 21, ये लिया 20, 20 × 20, रिमाइंडर आ रहा है 1, यानी कि ये 1 हमारे पास आ रहा है और ये वैल्यू बिल्कुल करेक्ट है। ये वैल्यू क्या है, बिल्कुल करेक्ट है। तो हमारे पास D क्या है, हमारे पास 7 है, और E क्या है, हमारे पास 3 है। ओके बेटा, ये चीज़ जो है उस वीडियो के अंदर बताई नहीं गई थी, छुपाई हुई थी बात, ताकि बच्चे ख्वार हो जाते। ये मैं आपको बता रहा हूँ, इस तरह से आपको काम करते हैं तो आगे से सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है बेटा, अभी लिख लो।
डन सर डन। जबरदस्त। आसान है मुश्किल है? आसान है सर। जबरदस्त। इजी है। अच्छा सर एक सवाल है जब तक ये कर सर, ये जो वो जो आप कोर्सेज हैं वो सारे कोई भी सिलेक्ट करना है ना बस? बेटा जो मेरे सब्जेक्ट का कोर्स है ना वो तो आपने लेना ही लेना है। तो और भी ले सकते हैं? हाँ हाँ, बाकी आपके सीएस के कोर्सेज हैं, आपकी बना के दी हुई लिस्ट आप ले सकते हैं। सर ये ज़रूरी है कोर्स करना? बेटा 10 मार्क्स बोनस हैं। अगर आपके मार्क्स लेट से 70 मार्क्स आ रहे हैं, 70 मार्क्स आ रहे हैं तो आपके 80 लिख दिए जाएंगे। अगर 80 आ रहे हैं तो 90 चले जाएंगे। 90 आ रहे हो तो 100 हो जाएगा। 90 आ रहे हैं तो आपके पास जाहिर सी बात है कि आपके पास 90 लाना भी इतना आसान काम नहीं है बेटा। मगर आपके जो जीपीए देखिए, आप ये भी कह सकते हैं ये सर्टिफिकेशन हो गई ना एक तरह की जी। इसमें आपकी वैल्यू है। ठीक है सर। अच्छा बेटा आगे चलें। ओके सर चलो। अब बताइए आ रहा है मुश्किल आसान है? ओके बेटा, अब स्टेप नंबर 7 क्या है? आपके पास सी है साइफर। सी हमारे पास साइफर सिंबल है ई। अच्छा बेटा अब बताओ ए बी सी डी ई लोकेशन कौन सी इसकी? 1 2 3 4 5। तो लोकेशन कौन सी इसकी? 5 है। तो हमने लिख दिया सिंबल है ई, लोकेशन है इसकी 5। अब हमारे पास साइफर की वैल्यू हो गई C इज इक्वल टू पी। पी हमारे पास क्या हो गया? 5 लोकेशन ये रही, 5 लोकेशन की पावर ई यानी कि पावर 3 यानी हो गया 125। ठीक है बेटा, इसकी वैल्यू हो गई 125। आपके पास आगे जो जवाब होगा C इज इक्वल टू 125 mod 33। 125 बेटा ई है ना ये लिखा ना, ये देखो P of E है ना? सही ये सही है। P of E है ना? तो P हमारे पास क्या है? वो सिंबल है, सिंबल की वैल्यू क्या है? 5 है। E क्या है? 3 है। अच्छा 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 P क्या है? 5 है। लिखा तो है ये P, ये देखो ये। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ओके सर सही है। फिर हमने नेक्स्ट स्टेप के अंदर क्या किया? हमने लिखा 125 mod of 33 हमने लिखा दिया यहाँ पर। C इज इक्वल टू P mod n सर P की वैल्यू 5 कैसे आई सर? बेटा ये देखो ना A B C D E 1 2 3 4 5। ठीक है बेटा, क्लियर है? चलें आगे। अरे चलें हाँ हाँ प्राइमर है, लापी प्राइमर आएगा। प्राइमर थोड़ा सा रह गया है तो कल जरूरत पड़ेगी। हाँ बोला तभी तो बोल रहा हूँ। प्राइमर हो गया, लापी हो गई, प्लास्टर ऑफ पेरिस और वो शादी मुबारक हो। शादी मुबारक हो बेटा। ठीक है ठीक है। शेर सिद्दीकी मास्टर ऑफ पेरिस ला रहा था। मुबारक हो। अभी आता है अम्मा, बुलाओगे शादी में? अभी तो बंद कर दिया। माइक ही बंद नहीं कर रहा। अच्छा वही मैं बोल रहा हूँ। अच्छा 125 है हमारे पास, mod of 33 डिफरेंस आएगा 26। तो आपने क्या किया? 125 ले लिया, इसको डिवाइड किया 33 से, और 33 कितनी दफ़ा जाएगा? 33 4 टाइम 3 4 12 का 1 3 4 12 का 33 3 का क्या जाएगा? 99। तो 3 से जाएगा ये 99, जजमेंट आएगा 26। ठीक है बेटा, ये 26 ये 26 देखो यहाँ लिखा हुआ, ये देखो ये 26। यस सर देख लिया। सही, 26 यहाँ पे आएगा। तो आपके पास ये इसको हम कहते हैं साइफर। 26 को हम कहते हैं साइफर। साइफर होता क्या है? ऐसा वर्ड जो आपके किसी काम का ना हो मगर इंक्रिप्शन में काम का हो। सही है, ऐसा हिडन वर्ड जो आपके किसी काम का ना हो मगर क्रिप्टोग्राफी में बहुत काम का हो। इसके बगैर आप इसके एक्चुअल मैसेज को पढ़ नहीं सकते। दैट्स द साइफर। ठीक है बेटा।
ओके ठीक है ओके ओके। अब हमने क्या किया नेक्स्ट, वेट अच्छा बेटा अब हमारे पास क्या है नेक्स्ट हमारे पास मौजूद है जी। अब हमारे पास क्या है, जो ये साइफर हो गया, ये जाएगा मीडियम में, ये जाएगा मीडियम में, यानी कि ये आपका इंटरनेट पे जाएगा और इस समझ में किसी के भी नहीं आएगा कि 26 के माने क्या हैं। ये आपका मीडियम में जाएगा यानी इंटरनेट पर जाएगा। उसके बाद उस साइड पे जब रिसीव होगा ये, तो आप लिखेंगे P इज इक्वल टू सी की पावर D। अब C क्या है हमारे पास, साइफर है। साइफर क्या है हमारे पास, 26 है, और 26 की पावर D, D क्या है हमारे पास 7 है, और आपके पास डिवाइड करेंगे मॉड ऑफ 33, क्या डिवाइड करेंगे। अब आप मुझे कैलकुलेटर से ज़रा निकाल के बताइए कि 26 की पावर 26 x टू दी पावर y 7, जैसे ही आप निकालेंगे आपका ये वैल्यू आएगी, जैसे ही आपको निकालेंगे आपके पास ये वैल्यू आएगी। ज़रा निकाल लीजिए, कैसे आएगी? कैलकुलेटर में निकालो ना। 26 x टू दी पावर y 7, आपके पास ये वाली वैल्यू आएगी, कैलकुलेटर से निकाल लो, आ गई वैल्यू। ओके हाँ आप निकालेंगे आपके पास आ जाएगी। अब करना है क्या है, 8031810176, इसको डिवाइड करना है आपने 33 से, सही है। तो 33 2 ज़ा 66, 10 में से 6 निकाले 4, बेटा एक मिनट सबर तो कर लो, सही है। 10 में से 6 निकाला 4 और 7 में से 6 निकाला 14, तो ये हो गया 3। अब ये बताइए ये 4 टाइम जाएगा, 33 4 से 132, इसको माइनस करेंगे 3 2 ज़ा 1, 4 में 3 निकाले 11, आप उसके बाद 3 के बाद एक और 1 आएगा, 3 जाएगा 3 पर। इसको जब आखिर तक कैलकुलेट करेंगे हमारे पास, तो ये वैल्यू आएगी 24338187, और आखिर में जो रिमाइंडर आ रहा होगा वो आ रहा होगा 5। ये 5 वही है मैसेज हमारे पास जो हमने ई को भेजा था, और 5 बराबर है ई के, तो यहाँ पे हमने प्रूव कर दिया इसको, ये चीज़ वैलिड है, ठीक है। इस पूरे एल्गोरिथम का नाम है RSA। अब ये बताइए इस एल्गोरिथम के अंदर और जो आपने वहाँ पढ़ा इंटरनेट पे, उसमें कितना फ़र्क है? हाँ ठीक है बेटा, इसको लिख लो। सर ये सारी की सारी कैलकुलेशन हमें कॉपी में करनी पड़ेंगी, मतलब कैलकुलेटर में नहीं कर सकते? डेफिनेटली आप अपना एल्गोरिथम बना सकते हैं, क्योंकि मैथ्स जो है ना अगर क्लियर होगा ना अगर, तो आपके लिए कंप्यूटर साइंस हलवा है। अगर आपको मैथ्स क्लियर नहीं है ना, तो कंप्यूटर साइंस आप ना ही करें, ज़्यादा बेहतर है। आगे वैल्यू तो आपने RS से 100% सीख लिया आपने। RSA कैसे काम करता है, किस तरह से काम करता है, क्या वैल्यूज आती हैं, मैंने सारी चीज़ें आपको सिखा दी हैं। तो ये हम लोग जो है आप क्लास असाइनमेंट के तौर पे ये करें, मैं इसको ओपन कर देता हूँ एज ए क्लास असाइनमेंट। आप इस चीज़ को प्रॉपर पेयर करके इमेज चीज़ के टर्न इन कर दीजिए। मैं आपको ज्वाइन करता हूँ 5:15 पे, ठीक है बेटा? 5:15 पे ज्वाइन करता हूँ मैं, 5:15 पे मेरी मीटिंग है अभी। ओके सर। ओके सर, ओके सर, अल्लाह हाफ़िज़। बेटा हो चुकी है अपलोड, आप देखो तो उसे, ये चीज़ देखो यहाँ पर है, दिखाऊंगा तुम्हें। सर मैं उतार तो लूँ, वो आपने हटा दिया। क्या चीज़? सर वो अभी आप बता रहे कैलकुलेशन उतार ली, ये लो। एक मिनट रुके ना सर हमने अभी उतारा नहीं है, इसको हम ना रिकॉर्डिंग देख के बाद हमारा बाद में। बेटा ऐसा नहीं करो ना, 12 बजे का टाइम दे रहा, चलो 12 बजे तक करवा देना इस चीज़ को। सर यही वाला क्वेश्चन हाँ सही से उतार के आपको भेजना है। हाँ बिल्कुल बेटा, ऐसे ही सही है सर, हम कर देंगे। ओके सर, 12 से पहले आज रात को कर देंगे। ओके फिर हेलो सर,
सर आ रहे हैं ना आप 5:15 पे? हाँ बेटा इंशाल्लाह, मैं घर पे हूँ। सर अगर यूनिवर्सिटी में होता तो मैं डाउटफुल होता। जी सर बेटा। हाँ बेटा बोलो। 5:15 बजे आके ये मार्क्स हाँ वगैरह लगाएंगे जो बाकी हाँ बेटा बेटा ऐसे ही। तो सर आप चले गए थे। अच्छा बेटा अभी हम इसको पढ़ने जा रहे हैं और हमने कहाँ तक स्टडी किया था? आवाज़ आ रही है आप लोगों को? ओके ठीक है। अच्छा ये टॉपिक कंप्लीट हो गया, इसमें कोई मसला है? कुछ भी मसला वगैरह नहीं है। मैं बुक ओपन करता हूँ और बुक ओपन करने के बाद जो नया चैप्टर है बता देता हूँ कौन सा चैप्टर है और क्या है, और कोई ऐसी चीज़ नहीं है। अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम वालेकुम। बेटा चैप्टर एक तकरीबन ख़त्म हो गया है, मैं अब इसके नेक्स्ट चैप्टर पे जाना चाह रहा था मैं। सर वो लेक्चर की आपने वीडियो शेयर की? कौन से वाले की? बेटा अभी बनेगी तो करूँगा ना मैं। सब पढ़ लिया है हमने, ये वाला सेट्स वगैरह पढ़ लिए ना हमने सारे।
पावर सेट्स वाले ये वो पढ़ चुके हैं ना हम लोग। जी सर। चलो खैर, अच्छा एक छोटा सा टॉपिक है, 15 मिनट के अंदर ख़त्म हो जाएगा, और चैप्टर का नाम है फंक्शंस। फंक्शंस के माने आपने उसे रेफ़र करना होता है, सही है। फंक्शन के माने आपने क्या करना होता है, उसे रेफ़र करना होता है, सही है। फॉर एग्ज़ाम्पल आपके पास अभी एडम है, अभी एडम का नाम शुरू किससे, सही है, या एडम का ग्रेड क्या है। फॉर एग्ज़ाम्पल एडम का ए ग्रेड आया है, सही है। उसके बाद रोड्रिगस का भी ए ग्रेड आया है, गुड फ्रेंड का बी ग्रेड आया है, चाउ का सी ग्रेड आया है, स्टीवंस का एफ ग्रेड आया है। तो इस जो मैपिंग को हम कह रहे होते हैं क्या, फंक्शंस कह रहे होते हैं, ठीक है। हम मैपिंग को क्या कह रहे होते हैं, हम उसको फंक्शंस कह रहे होते हैं, ठीक है बेटा। इसमें कोई मुश्किल बात तो नहीं है, कोई मुश्किल बात नहीं। अगर मैं यहाँ पे नाम लिखूँ, यहाँ पे लिखूँ नाम में आपके पास कुर्रतुल ऐन का नाम लिखूँ, फिर मैं असद इमरान का नाम लिखूँ, फिर मोहम्मद अली नदीम का नाम लिखूँ, फिर यहाँ पे मैं फ़िरोज़ा का नाम लिखूँ, फिर यहाँ पे वो मारिया का नाम लिखूँ, फिर यहाँ पे हंजला का नाम लिखूँ, और ये कहूँ कि आप मैप करें नॉर्थ और मेन कैंपस के हिसाब से, तो आपके पास जो लास्ट के जो नाम हैं वो सारे के सारे नॉर्थ पे कनेक्ट होंगे और बाकी के सारे नाम मेन पे कनेक्ट होंगे। ऐसा होगा या नहीं होगा, ऐसे ही होगा ना। तो इस चीज़ को हम कह रहे होते हैं फंक्शंस, इस चीज़ को हम क्या कह रहे होते हैं, फंक्शंस कह रहे होते हैं। इसको आप लिख लीजिए, यही एग्जाम्पल लिख लें, बहुत आसान एग्जाम्पल है। ये ग्रेड्स हैं हमारे पास और ये नाम है, ठीक है बेटा। जल्दी से कर लो उसको, 5 मिनट का टॉपिक का ख़त्म हो जाएगा अभी। ठीक है बेटा, देखो जल्दी से, ग्राफ लाना वो बस और कुछ भी नहीं, ये तो बताना चाह रहा हूँ मैं। अगर आपसे कोई भी पूछा जाए कि मैथ्स के अंदर फंक्शन आते हैं आपको, तो आप कहेंगे भाई फंक्शंस आते हैं। फंक्शंस काम कैसे करते हैं आप उन्हें बना के बता दें, ऐसे काम करते हैं, ठीक है बेटा। चलो हम आगे चलो। हम यहाँ पर हम लोग कह रहे हैं कि नॉन एम्प्टी भी हो सकते हैं, सही है। फॉर एग्जांपल एक बंदा है, वो क्लास में तो था, वहाँ पेपर नहीं दिया उसने, कोई सा ग्रेड नहीं आया उसको, सही है, या उसने आई ले लिया, ऐसा हो सकता है। तो ए एंड बी नॉन एम्प्टी सेट्स, सही, वो वाले सेट्स होते हैं, कोशिश ये करते हैं कि नॉन एम्प्टी हों, यानी भरे हुए सेट्स हो, खाली ना हो। कोशिश ये करते हैं कि वो भरे हुए सेट हो, खाली ना हो, और उसकी कोई ना कोई वैल्यू आपको बता रही हो, मैपिंग आ रही हो, सही है। एग्जाम्पल्स हैं, सही है। आपके पास ये सेट ए है या सेट बी है। फॉर एग्जांपल अब आप ये बताइए, सब जितने बॉयज़ एंड गर्ल्स हैं, आपके कोई ना कोई कज़न्स होंगे, या तो आपके कोई ना कोई मामूजाद होगा, खालाजाद होगा, चाचाजाद होगा, तायाजाद होगा। तो आपकी क्लास में जो आप बैचलर्स पढ़ रहे हैं, वो भी उस बैचलर क्लास में पढ़ रहा होगा, ऐसा होगा नहीं होगा। तो मैपिंग क्या होगी इसके अंदर, कि आप जो है आपकी फैमिली और आपके कॉलोनियल फैमिली, और कॉलोनियल फैमिली में कोई ना कोई बंदा वही पढ़ाई कर रहा होगा, इसको भी हम मैपिंग कह रहे होते हैं। तो कहते हैं फंक्शन मैपिंग, यानी कि कंप्यूटर साइंस का वही कोर्स, वही चीज़ें, वही स्टैंडर्ड को पढ़ रहा होगा हमारे पास, उसको मैपिंग कह रहे होते हैं। यानी कि एक सेट से दूसरे सेट फंक्शन, सही, और ये आपको ए वैल्यू उसकी, यानी कि आप और आपका जो है वो कॉलोनियल कज़न, वो उसकी वैल्यू, तो बी इज इक्वल टू एफ ऑफ ए, दोनों एक ही कोर्स पढ़ रहे होंगे, तो हम इसको यूँ लिखते हैं, ठीक है बेटा। इसको ज़रा बना लो, क्योंकि 130 क्रेडिट आवर्स आप भी पढ़ रहे हैं, 130 आवर्स वो भी पढ़ रहे हैं। मैं अपनी बात करता हूँ, जैसे मैं मेरे जो है हम उम्र जो है बहुत सारे मेरे कज़न्स हैं, यानी कि मेरे जो मामूजाद हैं वो 2 हैं, और इस तरह से मेरे खालाजाद हैं वो भी 1 हैं, फिर उसके बाद एक और खाला के वो 1 हैं, चाचाजाद हैं वो भी मौजूद हैं। तो कहने का मकसद यही कि सब एक ही क्लासेस के अंदर हम सब पढ़ रहे थे, मगर वो सिर्फ पढ़ रहे थे, सही, मगर मैं उसके साथ जॉब भी कर रहा था मैं, ठीक है। वो वाली बात है कि वो सिर्फ पढ़ते थे और कुछ नहीं करते थे, और मैं जॉब भी करता था। तो अगर उसको मैप करेंगे तो मैं यहाँ लिखूँगा अदनान फैमिली, यहाँ लिखूँगा मैं कॉलोनियल फैमिली,
तो यहाँ पे अदनान जो पढ़ रहा है वो भी वही पढ़ रहे हैं, मगर वो बंदा जो है आपके पास वो सिर्फ पढ़ रहा है, मगर ये बंदा जो है इसकी एक और ड्यूटी है, यानी जॉब भी कर रहा है, अर्न भी कर रहा है। ठीक है बेटा, जिसको कहते हैं फंक्शन एफ मैप ए टू बी। ठीक है बेटा, आसान है। सर इसमें जब भी क्वेश्चंस है ना तो डिस्क्रिप्शन से ऐसे ही बस एक ग्राफ बना दें। बस आप बना लें उसको, और क्या है इसमें, आपके सामने बना हुआ है। मैं तो बुक ओपन की हुई, मैंने तो मैं डेफिनेशन पढ़ा देता हूँ। ये देखो डेफिनेशन में ये लिखा हुआ है। नहीं वो तो पढ़ लिया मैंने। सही है। ए एंड बी से ए इज अ डोमेन इफ एफ एंड बी इज अ कोडोमेन ऑफ एफ। देख ली। अच्छा भाई, आपके पास क्या है, अच्छी सी एग्जांपल निकाल लेते हैं, उसके बाद कर लेते हैं। अब ये सेट देख लें, F1 प्लस F2, इसके अंदर दो सेट्स होंगे, सिंपल सेट F1 मल्टीप्लाई बाई F2, यानी कि मल्टीप्लाई में होंगे। यानी इस सेट के अंदर जो है हमारे पास बीच में अगर हम उसको मल्टीप्लाई करके ओपन कर लेंगे तो दो सेट में बन जाएगा। हाँ, ये भी हो सकता है। इसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं है मुश्किल जिसको कहा जा सके। अगर यहाँ लिखा हुआ है आपके पास F1 प्लस F2 मल्टीप्लाई बाई X, सही है, इज इक्वल टू, अगर मल्टीप्लाई करके ओपन कर लेंगे जवाब हो जाएगा। मल्टीप्लाई में है, आप इस तरह से लिख सकते हैं, तो ये जवाब सारे आ सकते हैं बेटा। ठीक है। अच्छा, उसके बाद है ऑन टू वन फंक्शन एंड ऑन टू फंक्शन। सेट टू वन और एन इंजेक्शन इफ एंड ओनली इफ एफ ऑफ ए इक्वल टू implies that a is equal to b and for all a and b in the domain of f, a function is said to be injective if it is 1 to 1। ठीक है बेटा। अब यहाँ पर क्या है हमारे पास 1 to 1 के अंदर कि a हमारे पास, अब इसमें 1 to 1 है, 1 to 2 नहीं है, यानी कि a जो है सिर्फ 4 से कनेक्ट हो सकता है, c जो है 1 से कनेक्ट हो सकता है, d जो है 3 से कनेक्ट हो सकता है। यानी कि एक इसका पॉइंट और इसका पॉइंट दोनों एक ही होंगे। ये नहीं होगा कि a जो है 1 से भी कनेक्ट है और a 4 से भी कनेक्ट है, एट द सेम टाइम दो चीज़ें नहीं हो सकती। ठीक है, इसको हम कहते हैं 1 to 1 फंक्शन। मिसाल के तौर पे अभी आप बैठे हुए हैं, सही है, तो आप इस वक्त एट द सेम टाइम सिर्फ एक ही कोर्स पढ़ रहे हैं, डिस्क्रीट स्ट्रक्चर, मगर कुछ लोग ऐसे हैं कि वो आके पास क्लास भी ले रहे हैं और जॉब का भी काम कर रहे हैं, तो ये चीज़ पॉसिबल नहीं होती। तो 1 to 1 फंक्शन के माने एक वक्त में एक ही काम कर रहे हैं। तो इसको बना लीजिए, फिर हम आगे जा रहे हैं। उसके बाद क्लास ख़त्म करेंगे, चाहिए टॉपिक ख़त्म हो जाएगा। 1 to many फंक्शन आएगा, हम टॉपिक ख़त्म। आसान है, मुश्किल है? ये फ्री के मार्क्स हैं आप लोगों के, इसमें बहुत आराम से आप फुल मार्क्स ले सकते हैं। ठीक है बेटा। जल्दी से बना लें, फिर हम 1 to many करेंगे और फिर क्लास छुट्टी करेंगे। अच्छा, आप लोग अब बताइए, मैथ्स आपको मुश्किल लगता है या मैथ्स आपको आसान लगता है? अभी तो जो पढ़ रहे हैं वो आसान ही लगे। आसान ही है ना, है ही, मैथ्स है ही आसान, मैं बता रहा हूँ आपको, मैथ्स कभी मुश्किल होता ही नहीं है। अच्छा, यहाँ पे क्या डिटरमाइन द फंक्शन ए बी सी डी 1 2 3 4 5। अब यहाँ देखें, एफ ऑफ ए इज इक्वल टू 1, एफ ऑफ बी इज इक्वल टू 2, एफ ऑफ सी इज इक्वल टू 3, एफ ऑफ डी इज इक्वल टू 4। ठीक है बेटा, ओके। तो अगर आपने यहाँ बता दिया एफ ऑफ ए इज इक्वल टू 4, अब आपने यहाँ पे कह दिया है, अब यहाँ आपने उसको पहले बता दिया एफ ऑफ ए सिर्फ 4 से कनेक्ट होगा, बी सिर्फ 5 से कनेक्ट होगा, सी सिर्फ 1 से कनेक्ट होगा और डी सिर्फ 3 से कनेक्ट होगा। आपने इसको बता दिया है, मैं बार बार ये कहना चाह रहा हूँ, आपने इसको बता दिया है, तो आपके पास जो ग्राफ जो बनेगा वो यही वाला ग्राफ बनेगा कि ए जो है सिर्फ और सिर्फ 4 से कनेक्ट है। यहाँ देखें, ए जो है सिर्फ 4 से कनेक्ट है, बी हमारे पास सिर्फ 5 से कनेक्ट है, सी हमारे पास, जी सवाल ये होगा और जवाब ये होगा। ठीक है, तो सवाल भी लिख लें ताकि कंप्लीट हो जाएगी।
ठीक है बेटा, सवाल लिख लिया? किसी के पास से जो है वो शाइन शाइन की आवाज़ें आ रही हैं, जैसे कब्रिस्तान में आ रही हैं ना, हाउ हाउ, इस तरह की आवाज़ें आ रही हैं। ठीक है बेटा, चलें आगे। इसमें देखिए फ्री के मार्क्स हैं, मैं बाकियों को भी यही की रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। इसमें देखें ऐसी कोई चीज़ नहीं है, आप बहुत आराम से नंबर जो है फुल हासिल कर सकते हैं, इसमें गलती का कोई चांस है नहीं। अच्छा, ऑन टू फंक्शन, ऑन टू फंक्शन के अंदर हमारे पास क्या है, ये किस तरह से कैसे काम कर रहा होता है। फिगर 4 यहाँ लिखा हुआ भी है। अरे भाई कहाँ लिखा हुआ है, आप बता दीजिएगा, आपकी थोड़ी निगाह तेज़ है, मैं भी देख लेता हूँ फिगर 4 कहाँ लिखा हुआ है। अरे भाई और कहाँ लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ। अच्छा बेटा, अब यहाँ पर क्या है, ये सवाल है। ओके बच्चे, ये सवाल है ABCD to 1 2 3, f of a is equal to 3, f of b is equal to 2, f of c is equal to 1, f of d is equal to 3, if an onto function, because all three elements of the codomain are images of element the domain we see f is equal to onto. This is related figure 4. Note that the codomain where 1 2 3 4, then f would नॉट बी ऑन टू। सही, तो आपके पास क्या है, वो आपके पास ऑन टू। अगर आपके पास क्या है, इफ कोड डोमेन वर, अगर कोड डोमेन हमारे पास 1 2 3 4 होता, अगर कोड डोमेन हमारे पास 1 2 3 4 होता एंड एफ वुड नॉट बी ऑन टू, तो एफ जो है वो ऑन टू नहीं होता, क्योंकि हमारे पास 1 2 3, हमारे पास जो सवाल है ये नंबर कम है, ये देखो ये नंबर यहाँ कम है और यहाँ पे हमारे पास नंबर क्या है वो ज़्यादा हैं, तो इस वजह से ये ऑन टू फंक्शन बन रहा है। अगर इसको भी 1 2 3 4 कर देते हम, यानी दोनों बराबर हो जाते, तो आपके पास पहला वाला फंक्शन बन जाता, 1 to 1 बन जाता, मगर ऑन टू नहीं बनता। यहाँ पर क्या हुआ, ABCD हमारे पास मौजूद है, 1 2 3 यहाँ मौजूद है, और वहाँ पर एक नंबर अगर हम बढ़ा देंगे तो ऑन टू नहीं रहेगा ये। ठीक है बेटा, इस सवाल को आप लिख लें, ये भी लिख लें, और डायग्राम जो है आपको ऊपर दिखा देता हूँ, फिर छुट्टी। ठीक है बेटा, जल्दी कर लो उसको, एक 2 मिनट के बाद छुट्टी है आपकी। सर उसका कहा था आपने? जी बोले सर, ईमेल करी थी मैंने सर उसका। इसका 10 मार्क्स 10 मार्क्स का कहा था। अच्छा, ठीक है बेटा, वो मीटिंग हमारी जो है ना वो ऐसी खौफनाक चल रही होती है, क्या बोलते हैं? ठीक सर, ठीक है इसको वो दिखाएं। सर 5 मिनट दें, मैं उस सवाल ख़त्म करके मीटिंग में आता हूँ। ठीक है सर, नाम ऑलमोस्ट अबाउट टू एंड हूँ। ठीक है, ओके। जी बेटा, ठीक है बेटा, आसान है। इसमें कोई आपके पास कोई डाउट है कि आप उसमें फेल हो जाएंगे सब्जेक्ट में, कुछ ऐसा है? कोई बच्चा ऐसा है जिसको डाउट हो कि ये सब्जेक्ट मैथ ऐसा है कि यार समझ भी नहीं आ रहा है, ये तो पता नहीं क्या होगा। ये बहुत ही आसान मैथ है, इसमें आप बहुत अच्छे मार्क्स ले सकते हैं। अच्छा सर, आपने जो अभी वो बताया था ऑनलाइन कोर्स के बारे में, डिस्ट्रिक्ट क्या नहीं बताया था? कॉम्बिनेटोरियल मैथ्स, हाँ वो मैंने आपको लिंक भेजा हुआ है, वो यही सब्जेक्ट है इसके अंदर, और वो आपके अंदर समझाया हुआ है उस चीज़ को। मगर कहने का मतलब ये है कि जब आपको ये समझ में आ गया सब्जेक्ट में कोई मसला ही नहीं, उसको तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है फिर। अच्छा, तो उसके क्लासेस के डेली होंगी या फिर? वो तो आपकी डिपेंड करता है कि आपके लिए टाइम अवेलेबिलिटी क्या है, तो आप उसकी वीडियोस देख लें, उसको डाउनलोड कर लें, और आपके पास जो फ्री कोर्स है, फ़ायदा ये होगा कि आप आराम से क्लियर कर लेंगे, सर्टिफिकेट मिल जाएगा। सर्टिफिकेट ना दे, पैसे मांगे, हम एग्ज़ाम रख देंगे आपका, वो क्लियर कर लें, हम सर्टिफिकेट दे देंगे। ठीक है, देखिए पढ़ने वाले बच्चे के लिए MIT भी मुश्किल नहीं है, हार्वर्ड भी मुश्किल नहीं है, जो ना पढ़ने वाला बच्चा हो ना उसके लिए सब मुश्किल है। ठीक है बेटा, बना लिया इसको? अच्छा, आगे कोई टॉपिक है नहीं, तो हम ये मीटिंग ये आपको, अच्छा ये फाइनल जो है हमारे पास है, ये 1 to 1 नॉट ऑन टू। सही है, हमारे पास क्या है, नॉट ऑन टू, ये 1 to 1 है, एक से एक। ऑन टू के माने ये कि यहाँ पर ज़्यादा हो, यहाँ पे कम हो। ठीक है,
1 to 1 ऑन टू नॉट 1 to 1। देखिए यहाँ ज़्यादा है यहाँ कम है, तो ये ऑन टू फंक्शन है हमारे पास। यहाँ देख लीजिए, यहाँ देख रहे हैं यहाँ पर, ओके। यहाँ ज़्यादा है यहाँ कम है, ठीक है। ये इंडिया की एग्जाम्पल है। इंडिया के अंदर आदमी ज़्यादा हैं, लड़कियाँ कम हैं, ठीक है। अब पाकिस्तान के अंदर भी कम हो गई है। पाकिस्तान के अंदर 52% आदमी है और 48% वीमेंस रह गई हैं, ठीक है। तो ऑन टू फंक्शन है। अच्छा 1 to 1 एंड ऑन टू। अब यहाँ पर भी 1 2 3 4 हैं, यहाँ पर भी 1 2 3 4 हैं, सही है। मगर आपके पास मल्टीपल जो है हमारे पास, ये भी कनेक्ट है, ये भी कनेक्ट है, दोनों सूरतें मौजूद है हमारे पास। नाइदर 1 to 1 नॉर ऑन टू। अब एक ही वक्त में दो बंदे जो हैं हमारे पास ये कनेक्ट हो रहे हैं इसके साथ, तो हमारे पास जैसे यहाँ कनेक्ट हो रहा है, तो ये नाइदर 1 to 1 नॉर ऑन टू। क्यों? अगर ये कम होते, जैसे यहाँ पे कम है, अगर ये कम होते तो ये ऑन टू बन जाता, मगर क्योंकि ये पूरे के पूरे हैं तो ना ये 1 to 1 है ना ये ऑन टू है, ठीक है बेटा। क्योंकि एक पॉइंट पे दो पॉइंट्स आ रहे हैं, तो 1 to 1 के माने एक वक्त में एक ही बंदा आएगा, मगर एक वक्त में दो बंदे आ रहे हैं और पॉइंट जो फुल है हमारे पास, तो ये ना 1 to 1 है ना ऑन टू। अच्छा अब यहाँ पर क्या है, नॉट अ फंक्शन के माने एक ही वैल्यू दो हो सकती है, एक ही वैल्यू 2 भी आ रही है, एक ही वैल्यू 4 भी आ रही है। बताएं कहाँ पॉसिबल है? अगर आपसे पूछा जाए कि आपके पास डिस्क्रीट मैच में आपके 2 ग्रेड आ रहे हैं, ए ग्रेड भी आ रहा है और बी ग्रेड भी आ रहा है, आप बताएं क्या कहेंगे? सर ये तो फंक्शन ही नहीं आ रहा। फंक्शन ही नहीं है ना, तो ये इसका स्नैपशॉट ले लें, फिर हम छुट्टी कर रहे हैं, ठीक है बेटा। और वो नंबर तो लगा दें सर। बेटा अभी देखो तुम्हें पता है मैं तो सुबह से काम कर रहा हूँ, अभी मीटिंग शुरू हो गई है, दोबारा से आपके सामने फ़ोन आया है, उसके बाद ही करूँगा मैं क्या करूँ मुझे बताओ? कुछ ना कुछ बीच में आ जाता है। आपके नंबर मैं रख के क्या करूँगा मुझे बताओ? मुझे क्या फ़ायदा है नंबर रख के? मुझे तो आपको देना ही देना है, ठीक है। मैं ईमेल्स के थ्रू, हाँ ईमेल्स के हिसाब से मैं लगा दूँगा बेटा, ठीक है। ओके चलो बेटा, ओके अल्लाह हाफिज़। मीटिंग के लिए कॉल आ रही है, ओके अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।